Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about some uses of solution. Now we are going to study about suspensions and their uses. Firstly, we need to know that what is meant by suspension. The word suspension is basically derived from the word suspended. As in suspension, the solute particles are suspended and this particle doesn't completely mix with the solvent molecules. Suspensions are basically a mixtures in which solute particles are too large and these particles move freely with the solvent particles or solvent molecules. After some time, these solute particles settle down at the bottom of flask or container. As you can see in this diagram, this tube contains a solution as solute and solvent molecules are completely mixed, while this tube contains a suspension. As we can see that in this tube the solute particles are suspended with the solvent particles and after some time these solute particles settle down at the bottom. Particles present in suspension can easily be separated by using a filter paper. Let us discuss about some examples of suspension. When we mix soil with water, then we will get suspension. As we can see that some particles of soil are suspended in water molecules while some particles of soil are settled down at the bottom of bottle. Similarly, when we stir up the bottom of a river or lake, then it also produces a suspension. As we see that after some time, the sand or soil again settle down at the bottom of river. As in human body, blood also forms suspension. As in blood, red blood cells, white blood cells and platelets are suspended in a solution which is known as plasma. Sometimes a suspension contains a large amount of insoluble solute particles. Then this suspension is known as slurry. For example, running paste of cement mixed with water. In this mixture, cement is act as solute which is insoluble in water which act as a solvent. Then it will form a mixture in which large amount of insoluble solute particles are present and this mixture is known as slurry. तो स्टूडेंट्स सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन जो है वो एक वर्ड सस्पेंडेड से निकला है. सस्पेंडेड का मतलब है लटके होना यानी मौलिक होना. सस्पेंशन जो है वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है और ये सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं हो पाते और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनता. तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ फ्रीली मूव करते रहते हैं. आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास कंटेनर या बोतल है जिसके अंदर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं होंगे और कंटेनर या बोतल का जो बॉटम है वहाँ बैठ जाएंगे. जैसे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं. डायग्राम में हमारे पास दो ट्यूब्स हैं. एक ट्यूब के अंदर एक होमोजीनियस मिक्सचर है यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली मिक्स हुए हैं. जबकि जो राइट साइड वाली बोतल है हम देख सकते हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं हुए बल्कि फ्रीली मूव कर रहे हैं और सस्पेंडेड फॉर्म में हैं. और हम क्लियरली देख सकते हैं कि सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स बोतल के बॉटम में भी बैठे हुए हैं. सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए होते. सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं इनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं. अब हम सस्पेंशन के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. अगर हम सॉइल को वाटर के अंदर मिक्स करें तो एक सस्पेंशन बनता है. इस बोतल के अंदर हम देख सकते हैं कि मिट्टी के जो कुछ ज़र्रात हैं वो पानी के अंदर सस्पेंडेड हैं जबकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बोतल के नीचे बैठे हुए हमें नज़र आ रहे हैं. इस तरह से सॉइल के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते और एक सस्पेंशन बनाते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर हम रिवर या लेक वगैरह के बॉटम को हिलाएं तो मिट्टी या रेत वगैरह के कुछ ज़रात ऊपर की तरफ आते हैं और कुछ देर के बाद ये जो पार्टिकल्स ऊपर आए होते हैं ये दोबारा से बॉटम में बैठ जाते हैं. इसी तरह से जो ह्यूमन ब्लड है वो भी सस्पेंशन की एक एग्जांपल है क्योंकि ह्यूमन ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. समटाइम सस्पेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनसोल्यूबल सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं.
तो वो सस्पेंशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनसोल्यूबल सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल्स हों, तो ऐसे सस्पेंशन को स्लरी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम सीमेंट को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो ये एक स्लरी बनता है, क्योंकि सीमेंट पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है और सीमेंट की ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की जाती है। तो वो तमाम सस्पेंशन जिनके अंदर सोल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और सोल्यूट की ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की जाए तो उन तमाम सस्पेंशंस को स्लरी कहा जाता है। The first question is define suspension. So how we will define suspension? A mixture in which solute particles are too large to move freely with the solvent particles and the particles settle down after some time is called a suspension. The next question is about different examples of suspension. In the answer of this question, you will write these examples of suspension. Here the last question is define slurry, a suspension which contain a large amount of insoluble solid solute particles, then this is called slurry. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि सस्पेंशन की तारीफ़ करें, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट के ज़र्रात इतने बड़े हों कि सॉल्वेंट के ज़र्रात के साथ आज़ादाना हरकत कर सकें और कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएं, सस्पेंशन कहलाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन की चंद मिसालें बयान करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो आपको सस्पेंशन की डिफरेंट एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई हैं वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्लरी की तारीफ़ करें। तो वो सस्पेंशन जो बड़ी मिकदार में नाहल पजीर ठोस सोल्यूट पर मुश्तमिल हो स्लरी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।